Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, in previous lecture, you have studied the formation of Gram Sabha and its function, as well as formation of Gram Panchayat and its function. Now, in this lecture, you will study about Nyay Panchayat as well as funding of Panchayat and the role of women in Panchayat. Now students, we will learn about Nyay Panchayat. A Nyay Panchayat is the local court at the village level. Usually, there is one Nyay Panchayat for every 3 to 4 villages. Its main responsibility is to solve simple disputes among people. It deals with cases of petty theft, minor trespass, and other such cases. Now, students, we see that there is a Nyay Panchayat between 3 or 4 villages, but here there are no lawyer or judges, only the Panch give the decision for small disputes like theft or trespass, means sin or wrong thing done by the people. So they only fine from the people. In short, हम कह सकते हैं कि न्याय पंचायत है वो 2-4 गांवों के बीच में होती है और छोटे मोटे झगड़े निपटाती है, और जो लोग सज़ा के पात्र होते हैं, जो गुनाह करते हैं, उनसे कोई दंड लिया जाता है, उससे ज़्यादा उन्हें कोई सज़ा नहीं दे सकते. 1/3 of the total seat are reserved for women in the Nyay Panchayat. Unlike other court, it does not have power to punish people, nor does it have any lawyer or judge in its member. It can levy fine on the villagers and refer cases to the district court. In case it cannot be settled at the village level but cannot imprison people. As the name suggests, this panchayat bring justice or न्याय टू द विलेजर. जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो है पंच ही जो है न्याय करती है, और इस पंच में, इस न्याय पंचायत में जो है 1/3 यानी कि तीसरा भाग स्त्रियां भी इसमें भाग लेती है न्याय पंचायत में, और जो है वो गुनाह करते हैं उनसे वो कुछ दंड लेती है, और अगर वो नहीं कोई नतीजा ला सकती है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो केस को आगे भेज सकती है. इस तरह से जो है न्याय पंचायत गांव में काम करती है. फंडिंग ऑफ द पंचायत्स. द पंचायत्स नीड मनी to carry out the development work in the villages. Some of its sources of fund are taxes collected, funds from state government, funds received from center for its scheme, and budget allocation from finance commission. In short, in this paragraph we come to know about the sources ऑफ पंचायत. पंचायत को आय के कौन कौन से साधन हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द विलेज पीपल. विलेज पीपल जो टैक्स देते हैं उनसे पंचायत
अपने डेवलपमेंट के काम करती है। सेकेंड, फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट भी पंचायत को फंड देती है, धनराशि देती है डेवलपमेंट के काम करने के लिए। फंड रिसीव्ड फ्रॉम सेंटर फॉर इट्स स्कीम, अब जो तीसरी टाइप की गवर्नमेंट है, हाईएस्ट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी स्कीम यानी अलग अलग योजनाओं के लिए भी फंड देती है। और बजट एलोकेशन, बजट को पास करने के लिए फाइनेंस कमीशन यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, कमीशन यानी कि उनकी एक कमेटी होती है, वो निर्धारित करती है, निश्चय करती है, नक्की करती है कि कौन कौन सी पंचायत को कितना कितना धनराशि देना चाहिए। तो इस तरह से फाइनेंस कमीशन की तरफ से भी उन्हें धनराशि मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज MOPR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया initiated e-Panchayat in the country. This has helped in increasing public participation as well as connecting more than approximately 2 lakh panchayat in the country. The Panchayati Raj system has empowered the people of the rural area and has made them active participants in the governance of their areas. This is not only giving them a training in democracy but also making them self-confident and responsible citizens. The Panchayat has also created opportunities for the women in the village as an increasing number of women today are elected to the panchayats. Now, students, from this paragraph we come to know about the importance of Panchayati Raj. Nowadays, the importance of Panchayati Raj increase because at the local level also people are very responsible and active. So MOPR जो है वो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटेड मतलब शुरुआती कार्यक्रम है जो ई-पंचायत है वो पूरे कंट्री को जोड़ती है। इसमें 2 लाख से भी ज़्यादा पंचायत जुड़ी हुई है। तो इस तरह से लोगों को पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा है और वो अवेयर भी होते जा रहे हैं। तो इस तरह से पंचायती राज जो है ई-पंचायत से कनेक्ट हो गया है, तो लोगों में जो है अवेयरनेस आ गई है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द लोकल लेवल इज़ ऑल्सो वर्किंग सेम एज ए स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार चलती है, इसी तरह से पंचायती राज भी चलाते हैं लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का। तो लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर बहुत ही अवेयर हो गए हैं और साथ साथ पंचायती राज में 1/3 जो है वुमेंस के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी सीट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियां इसमें भाग लेकर अब स्त्रियां भी हैं पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में आने लगी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वुमेन इन पंचायत में कहा है, टुडे पंचायत हैव बिकम ए सोर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। द वुमेन इन विलेज are now taking active interest in the affairs of the village. They are no longer confined to household work. 1/3 of the seat
in the panchayat are reserved for women so that women can get representation in the panchayats and their issues and problem can also be addressed. तो इस तरह से पंचायती राज में 1/3 स्त्रियों के लिए सीट रखकर वो अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करती है विलेज के अफेयर्स में, विलेज के मैटर में, विलेज के मामले में, और वो खाली घर के काम करके नहीं बैठती है मगर वो उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन करती है, अपना वो योगदान देती है और अपनी और गांव की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने में आगे चल के भाग लेती है. नाउ स्टूडेंट्स, it's a time for recall that what we have studied. बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा उसका हम मेन पॉइंट्स देखते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट व्हाट इज पंचायत एंड नीड फॉर पंचायत. पंचायत क्या होता है, उसका अर्थ और पंचायती राज की क्यों ज़रूरत होती है. ओके, देन स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज. तो पंचायती राज का गठन कैसे होता है. देन पंचायती राज के गठन में जो 3 मेन बॉडीज़ हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत, वो तीनों बॉडीज़ भी हमने देखी. फिर ग्राम सभा किस तरह से बनती है और फंक्शन ऑफ ग्राम सभा. देन ग्राम पंचायत कैसे बनती है और फंक्शन ऑफ पंचायत, यानी कि ग्राम सभा के कार्य और ग्राम पंचायत के कार्य. थर्ड है न्याय पंचायत. तो वो न्याय पंचायत क्या होती है और उसका क्या कार्य होता है. तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज देखा हमने. देन फंडिंग ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायती राज को कहाँ कहाँ से इनकम होती है, उसकी आय के कौन कौन से साधन है. नेक्स्ट हमने देखा वुमेन इन पंचायत. तो पंचायत राज में जो है वुमेन्स को भी 1/3 जो है हक होता है, उनके लिए 1/3 सीट होती है. तो ये भी हमने देखा. इस तरह से वुमेन का सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट है आजकल हो रहा है देश में, ये भी हमने जाना. तो मुझे आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि देश के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, थैंक यू.